अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आपने किसी ने भी क्वेश्चन नहीं मुझे सेंड किया। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है मिड से इम्पोर्टेंट रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो ये जो आज हम कर रहे हैं ये आपके मिड का हिस्सा है और दिस इज इम्पोर्टेंट, रियली इम्पोर्टेंट फॉर मिड। एक कोरिलेशन और दूसरा जो अभी हम रिग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू डू नॉट पे अटेंशन टू टुडेस लेक्चर, यू आर गोना मिस complete question from your mid exam, midterm exam. Anyway, so today's lecture is very important. Okay, share the screen. Let me share the complete screen again. Sorry. All right, screen is visible again. We are back. मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद स्टिल टाइम दूंगा। जिन लोगों ने मुझे फाइल सेंड किया मैं उनकी अटेंडेंस मार्क कर लूंगा, ठीक है। Am I audible properly? Okay. Let's come to the regression. We discussed this one. This was exercise, and are you up? We should continue. I सर जो need. पोस्टर करने को दिया था वो आपको व्हाट्सएप करना है या ग्रुप में शेयर करना है? आप ग्रुप में भी शेयर कर दें या मैं क्लास के बाद लिंक देता हूँ उस पर अपलोड कर दें, जो भी आपके पास उसका स्क्रीनशॉट है या पिक्चर है या पीडीएफ है। जो आई विल जस्ट मार्क अटेंडेंस फ्रॉम देयर। पेज पे अपने नाम लिखना है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन विल हेल्प मी टू मार्क योर अटेंडेंस। जिनका नहीं होगा मैं उनकी मार्क अटेंडेंस नहीं करूंगा। All right, so regression. इंट्रोडक्शन में मैंने शुरू में आपको बताया था इट्स अ फर्स्ट मॉडल, द वेरी आई मीन बेसिस ऑफ मशीन लर्निंग। जो आजकल आप पूरा एआई का वर्ल्ड देख रहे हैं, दिस इज जस्ट सिंपलीस्ट ऑफ द मॉडल। इसमें दो वेरिएबल्स का रिलेशन और फिर उस एक की बेसिस पे दूसरे की प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। So it describes just a relationship between two variables and helps us to predict the future values of one variable, which is supposed to be called dependent variable. Maths में हम उनको independent और dependent variable कहते हैं, जबकि statistics में जो dependent variable होता है that's a response variable और independent variable को
explanatory because it helps us to explain the dependent variable. ठीक है, explanatory variable. ये mathematical terms and dependent and statistics में response और explanatory terms words are used. ठीक है, okay. This relationship is best described by again a linear equation. जैसे आप business maths में आपने पढ़ी थी y is equal to mx plus b. This is the very same line, y is equal to mx plus b. आप देख सकते हैं, ठीक है, y is equal to mx plus b. So when you are given in certain values of x and b, आपको पेयर्स गिवन हो तो उनकी बेसिस पर आपने b और m फाइंड करने होते हैं. m इज योर स्लोप, लीनियर लाइन में आपने बिजनेस मैथ में पढ़ा है. b इज y इंटरसेप्ट. ये फाइंड करने होते हैं बाय यूटिलाइजिंग ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y. ठीक है, तो वो जो वैल्यूज मिल जाती हैं m और b की, उनसे जो ये जो लाइन बनती है y इज इक्वल टू mx b, दैट इज कॉल्ड द बेस्ट फिट लाइन और रिग्रेशन लाइन. ठीक है, so this is what I mean. The summary of all this regression line is, now question remains, if the values of x are given and y are given, how we can find m and b, right? The slope and the y-intercept. Okay, m is slope, b is the y-intercept kind of thing, and this is again a formula. Okay, regression line ka, if these are the values given, dots 1 2 3 4 5 scatter plot, तो ये for example supposed to be the best fit line, तो इसका एक slope होगा और इसका ये y intercept होगा somewhere over here. तो इसमें हमने ये b और m फाइंड करने हैं. उनके फार्मूलाज आपके ये हैं. ठीक है, now you need to understand कि ये फार्मूलाज क्या हैं, but there is a different formula which is computationally feasible, जो आपको एग्जाम में आप फॉर एग्जांपल याद करके यूज कर सकते हैं. आपने रिमेंबर अगेन करना है. ठीक है, तो let's understand this formula. So this r is a correlation coefficient. ठीक है, m is a slope which is equal to r correlation coefficient. sy is a standard deviation of y. sx is a standard deviation of x, and this y bar is I think, let me write these values. So this s, तो सबसे पहले तो हम ब्रेक कर दें s underscore y standard deviation of y, then this x, sx is a standard deviation of x, and then r is correlation coefficient. बाकी क्या रह गया, x bar और y bar. So let's see, bar x and bar y are means of x and y. एक x की मीन है और दूसरी आपकी y की मीन है. ठीक है, okay. So ये उनके formulas की explanation है. But well, as I already mentioned, you're not going to use this formula. There is another one, convenient one, easily usable, जिनसे आप computations easy कर सकते हैं. But remember, दोनों formulas से values हमेशा आपकी same आएंगी. ठीक है, कभी भी different values नहीं आएंगी, क्योंकि एक formula दूसरे से ही निकला हुआ है या drive हुआ है. ठीक है,
This is more computationally feasible formula, but I think this is not one, but let me write this formula is still not feasible. This is formula 1. Okay. And this is computationally feasible formula 2. Assalamualaikum. Dr. Saab, can you give me a couple of... thank you. We are going to use this one, last one. अच्छा, if you want to see the difference between these two, इसमें ये जो है ना means use हो रही हैं, ठीक है, दोनों की, और difference लेके और उनकी summation और kind of things. Again, this is very, I mean, easy because if you just go through, ये आपकी equation बनेगी, ठीक है, y is equal to mx plus b. m आप इस तरह compute करेंगे और b आप इस तरह. m compute करने में you simply need summation of xy, summation of x, summation of y, summation of x square, summation of x whole square. तो आपको दो न्यू टर्म्स हैं जो आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे. एक समय एक्स वाई, फिर उसका सम, और एक एक्स स्क्वायर उसका सम. एक्स और वाई तो आपके पास ऑलरेडी गिवन डेटा होगा, उनका सम आपने फाइंड करना है. ये जब एक्स का सम फाइंड कर लिया तो स्क्वायर आ जाएगा. तो ये चारों टर्म्स आपके कवर हो गए. अच्छा, बी कैसे आएगा? इसमें ये वाई बार और एक्स बार, जब आपने x को और y को सम कर ही लिया है तो उससे मीन निकालना इट्स नॉट अ बिग डील. यू जस्ट डिवाइड इट बाय n. इन सम ऑफ x को n से डिवाइड करेंगे, सम ऑफ y को n से, तो आपको मीन मिल जाएगी. ये आपकी x और y की मीन है. ये आपका m जो ऑलरेडी कंप्यूट किया होगा आपने, वो यूज होगा और आपको b मिल जाएगा. या फिर b के लिए अल्टरनेटिव, ये भी एक फार्मूला है. इसमें भी आपको कोई और कंप्यूटेशंस टेबल में अलग से डालनी नहीं पड़ेंगी. जो चीजें यहाँ यूज हुई हैं वही आपकी यूज होंगी. फॉर एग्जांपल समेशन ऑफ y, जो y गिवन होगा, समेशन ऑफ x स्क्वायर, ये जो यहाँ टर्म यूज हुआ है वहां ही, माइनस दिस इज अगेन समेशन ऑफ x, ठीक है, जो x आपको गिवन है. समेशन ऑफ x टाइम्स y, जो फर्स्ट टर्म आपने यहाँ m में यूज किया वही यूज होगा. नीचे आएंगे, n आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज. समेशन ऑफ x स्क्वायर, ये आपने यहाँ यूज किया था. x स्क्वायर जो आपने कंप्यूट किए थे उनके सम, और ये समेशन ऑफ x जो आप ऊपर यूज कर चुके हैं उसका टोटल का स्क्वायर. तो दो चीजें आपने कंप्यूट करनी है रिग्रेशन लाइन में. एक x का स्क्वायर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, इसका स्क्वायर. और दूसरी चीज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, दोनों वेरिएबल्स की इन शॉर्ट, ठीक है. और फिर आप कोर्स उन सब के आपको सम करने होंगे. सो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फार्मूला. आई वुड सजेस्ट यू टू यूज दिस वन, द इजीएस्ट द फार्मूला, ठीक है. ये आपका थोड़ा सा हार्ड है. इसमें आपको ये मीन और स्क्वायर्स और ये सारी चीजें फाइंड करनी पड़ रही हैं. if you like this formula you're free to use even this one. इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन y और x की, और फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑलरेडी फाइंड करना पड़ रहा है, और काइंड ऑफ, ठीक है. so we will be doing one example using this formula, ठीक है. ये जो आप फार्मूला अभी देख रहे हैं. Okay, the recording is on, and let's go to the example now. This is again a bit of explanation. So I think these are kind of obvious things which I already explained to you. What is the slope of the line? So m is slope and b intercept. If you can carry on these concepts from business maths class. If the value of m is quite large and positive, so it's like increasing, and if value of m is negative and it's large, so it's decreasing and rapidly decreasing. जितना value small या ज़्यादा होता है उतनी उसकी increase या decrease बताती है, and sign of m is just increase or decrease. Okay, so these are the examples below different lines का, ठीक है. So just go through it. I don't think there is nothing, I mean, that important. If you have question, I can pass and explain it. Otherwise, I will just jump to the example.
Any query or question, like if you want to understand these slopes? Okay, let's move on. How to determine slope and types of regression is also not important. We will be only doing linear regression जब आपका linear का model होता है तो. So this is example. I'm using the very same example which we use for the correlation kind of thing. Are you doing something which anyone is doing with like screen? आप deliberately कर रहे हैं क्योंकि ये हमें भी show हो रही है. I don't know how. I mean, you can. ये कैसे आप के पास ये चीजें आ रही हैं? I'm confused. Okay, this is okay. So look at the example. Same example, values of x, the explanatory are independent variable is the area, and this is price. Remember, we have 5 observations, 5 values of x and 5 are y. This was the scatter plot. Okay. The example is done with 2 methods. Since I suggested you to follow the second method, it was easy. So I'm skipping this one, but this will present in the slide if you want to use this one. And for this example, this is easy because we have already computed the R, correlation coefficient. Okay, तो बाकी चीजें सीधी है वो. ठीक है, so easy हो जाती हैं. So this is method 1. Skipping now, this is method number 2, the blue one. We do not have red sign here, red color, and this is formula, remember. So M and B, then we will have this line and that's it. So first we need to find M. In order to find M, we have to find these x times y or x square or summation x whole square और ये, पर ये दो terms हमने find करनी. ठीक है, so look at this formula again. We need to find these 2 terms, one which is red, one which is green. बाकी ये आपके given होंगे और इन्हीं को आपने sum करना है. So recall, these are the values x and y की. आपकी पहले कॉलम में x की वैल्यूज गिवन है, दूसरे में y की वैल्यूज गिवन है. इनको सम करना है आपने. तीसरा कॉलम आपने, आई गो बैक टू दिस फार्मूला, ये जो रेड वैल्यू है x टाइम्स y, एक कॉलम इसका ऐड करेंगे हम. फिर ये जो ग्रीन फॉन्ट x स्क्वायर है, ये तीसरा कॉलम ऐड. ठीक है, मतलब एडिशनल एक कॉलम और इनकी वैल्यूज होंगी, फिर इनका सम होगा जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट में किया था. उसमें एक एडिशनल कॉलम y स्क्वायर का भी था. अगर सिंपल रिग्रेशन करनी है तो आपको y स्क्वायर नहीं कंप्यूट करना पड़ेगा. ठीक है, कोरिलेशन भी सेम उसका करना है तो आपको y स्क्वायर भी करना पड़ेगा. मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक ही क्वेश्चन की रिग्रेशन लाइन भी बनानी होती है और कोरिलेशन भी, तो आप बेहतर है कि उसी का x स्क्वायर और y स्क्वायर भी कॉलम ऐड कर दें. ठीक है, y स्क्वायर आपका रिग्रेशन में यूज नहीं होगा, वहां पर यूज कोरिलेशन में होगा. वेल, इनका सबका सम आ गया. अब नाउ यू जस्ट पुट ऑल दीज बोल्ड फॉन्ट में जो वैल्यूज हैं इनको. 5 आपके टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है, ये जो रेड है आपका वैल्यू 18447 माइनस समेशन ऑफ x इज 81, समेशन ऑफ y इज 1123. नीचे आपके डिनोमिनेटर में n अगेन इज 5. ये ग्रीन फॉन्ट 1327 आपके जो वैल्यूज हैं समेशन ऑफ x स्क्वायर की, ये समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर है. ठीक है, नाउ दिस इज लाइक 81 का होल स्क्वायर विच इज 6155. इसको जब आप कंप्यूटर से सिंप्लीफाई करेंगे यू गेट दिस रिजल्ट. इंटरेस्टिंगली अगर आप देखना चाहते हैं इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो जो r में आपने न्यूमिनेटर कंप्यूट किया है ना, इसका बिल्कुल सेम है न्यूमिनेटर. देखें n x y समेशन x समेशन y, r में आपका ये बिल्कुल न्यूमिनेटर सेम था. इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस वन एंड इफ वी गो बैक, या मेरे अगर इसमें कोएफिशिएंट का मैंने फार्मूला लिखा था, हाँ लिखा हुआ. ठीक है, n समेशन x y माइनस सम x सम y, n समेशन x y माइनस सम x सम. तो देखें r और इसमें न्यूमिनेटर का आपका सेम है. तो दिस विल बी कन्वीनियंट फॉर कंप्यूटेशंस
on pen and paper and kind of thing. So इसमें न्यूमिनेटर में 1272 आपका आता है, इसका मतलब है 1272 और नीचे जो इसकी जो वैल्यू आएगी that will be like I computed right here, it's like कितनी आ रही है 74, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू गेट 17.18, दिस इज वैल्यू ऑफ m, ठीक है। ये आपकी वैल्यू m की फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट जो आपने फाइंड करना है दैट इज b, विच इज इक्वल टू y का मीन और आपका x का मीन, और उसमें m भी ऑफ कोर्स यूज होगा। तो y का मीन यू कैन जस्ट फाइंड सेपरेटली ओवर हियर, like put the insert somewhere, text box, and x bar is equal to, ये आपका होता है sum of x divided by n। आपके पास sum of x ऑलरेडी है which is 81 divided by 5, and this will be equal to 81 divided by 5 कितना होगा? come on जल्दी 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 16.2, 80 को डिवाइड करें 5 से कितना आएगा? 60, so this will be 16.52, so this is like equal to 81 divided by 5, 16.2। ये आपकी x की मीन आ गई। सिमिलरली आपका जो y की मीन होगी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ y डिवाइड n, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ y कितना आपको नजर आ रहा है? 123 डिवाइडेड बाय 5, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 112 224.6, कितना? 224.6. Thank you. So this is 224.6. Like this is mean of y, yeah, y bar. So we will be using these values here. 224.6 minus m times x bar. X bar is 16.2 and m is like 17.18, which will be equal to 224.6. So 224.6 minus value of m is 17.18 star 16.2 minus 53.71, okay, minus 53.71, and if you just go back तो उससे सॉल्व था पहले, वाकई b की वैल्यू यही आ रही थी, या you see minus 53.8, ये आपकी b की वैल्यू है minus 53.8। हमने भी मोरलेस यही की है, 7-1 डेसिमल प्लेसेस का राउंड ऑफ में एरर आपका आ जाता है 620, ठीक है। सो नाउ यू हैव दीज टू वैल्यूज, ये आपकी m की वैल्यू, ये आपकी b की वैल्यू। नाउ रिग्रेशन लाइन विल बी, जो आपकी रिग्रेशन लाइन होगी y इज इक्वल टू m आपके पास है 17.18 x प्लस प्लस की जगह पे माइनस 53.7, that's answer। So this is your regression line, and you can predict house values putting the value of x, so means you can predict value of y putting value of x into this one, like ये हमने यही कंप्यूट कर दिया है, ये फार्मूला।
ये मैं कर रहा था but I think we already did it. So now you can predict like any value, any price of house. जब आप for example एक house है जिसकी price है next real estate agent के पास आ रहा है 20,000 स्क्वायर फीट का एक ब्रिक वाला, तो उसकी प्राइस कितनी होगी? सो पुट x इज इक्वल टू 20 इनटू दिस मॉडल, यू विल सी द वैल्यू ऑफ y, द प्रेडिक्टेड प्राइस। तो इसी तरह ये सिंपल मॉडल आपका काम करता है या क्या? ठीक है, इज दिस क्लियर? रिग्रेशन सर इसका एक दफा ग्राफ पे ड्रॉ करना बता दें किस तरह करेंगे। स्कैटर ग्राफ। सर ये जो भी आपने समझाया है इसको ड्रॉ करना बता दें कि किस तरीके से ग्राफ पे ड्रॉ ठीक करेंगे। है, मैं एक्सेल में यूज करता हूँ क्योंकि मेरी ज्योमेट्री इज लाइक रियली बैड, सो दिस इज योर वर्कआउट एंड इसी में एक और शीट हम डालते हैं। ये आपकी x की वैल्यूज में यहाँ मतलब सारी चीजें डिटेल आउट कर देता हूँ जो भी थी, ठीक है? तो x एरिया, I प्राइस ऑफ हाउस, एरिया इन स्क्वायर फीट। ऑलराइट, सो ये x की वैल्यूज हैं, आपकी प्रेजेंटेशन से ले रहे हैं 14, 15, then 17, 19, 16, and then values of these are 178, 230, 240, आपको यहाँ करना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं जब आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन दोनों फाइंड करने हैं। फाइंड नंबर 1 कोरिलेशन, नंबर 2 रिग्रेशन, ठीक है? तो सबसे पहला ये होगा आपका सम ऑफ एक्स। यहाँ एक्सेल में सम कैसे लिखा जाता है? Okay, let's do it from here. Summation of x, नहीं ये तो खुद हो जाएगा। समेशन x स्क्वायर दूसरा है समेशन y स्क्वायर, तीसरा आपको चाहिए होगा समेशन x और y, ठीक है? ये आपका x के स्क्वायर्स होंगे, ये सब वैल्यूज आ गए। ये आपके पास y के स्क्वायर्स हैं, ये आपके दोनों के मल्टीप्लीकेशन। ये देखें, ये वैल्यू इतनी बड़ी आ गई कि मुझे सस्पेक्ट हुआ कि मैंने सही नहीं देखा। सो दिस वाज लाइक 200, सही हो गई ऑटोमेटिकली। एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस वन, और ये पूरे कॉलम के लिए खुद ही कर। नाउ लास्ट में हम इन सब का ऑफ कोर्स सम लिखेंगे। सो होम, दिस इज ऑटो सम, इसी तरीके से ये इसका सम हो जाएगा, ये इसका सम इंटर यहाँ रख के सिर्फ ऑटो सम एंड इंटर, तो ये मेरे सब सम्स हो जाएंगे। कितने मिनट्स हैं? वी हैव 9। ओके,
दिस इज सम these numbers are to be used, तो इनको बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। ये आपके सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, सम ऑफ काइंड ऑफ चीजें हैं। मुझे चूंकि मीन भी चाहिए, सो मीन ऑफ एक्स में लिख लेता हूँ, ये सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 5 होगा, ठीक है। सो दिस नंबर डिवाइडेड बाय 5, और मीन ऑफ वाई रिग्रेशन में चाहिए होगा ना, इसीलिए मैं ऑलरेडी कर देता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय 5, ये आपकी मीन भी आ गई, ठीक है। किसी ने सवाल जो है वो मतलब प्लॉट करने का, ठीक है। आप पेन पेपर पे करेंगे ना, तो ये आपके पास एक्स वाई की वैल्यूज हैं, इनको मैंने सिलेक्ट किया है, मैं एक्सेल में प्लॉट कर रहा हूँ, सेम जो हम मतलब पेन पेपर पे कर रहे होते हैं। ये आपका स्कैटर प्लॉट आ गया, ठीक है। आपका ये एक्स एक्सिस है। सर जी बच्चे बोले। एक्स की और वाई की वैल्यूज लेंगे, अदरवाइज हम किसी वैल्यू को टच नहीं करेंगे। एग्जैक्टली आप जो शुरू में वैल्यूज आपको दो गिवन है, उन्हीं को आपने प्लॉट, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी, वाई पे आपकी वाई की वैल्यू आएगी, हॉरिजॉन्टल पे एक्स, यहाँ पर वाई, जैसे लीनियर फंक्शन प्लॉट करते हैं ऐसे ही सिंपल, ठीक है। तो एक एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये 14 है ना यहाँ पर, तो इस वैल्यू को आप, अगर मैंने कर्सर रखा हुआ है तो 14 और 178 आपको ब्रैकेट में दिखा रहा है, तो वो जो वैल्यू एक्स की 14 और 178 वाई की वैल्यू है, यही यहाँ प्लॉट है। इसी तरीके से किसी और रैंडम वैल्यू पे मैं कर्सर रखता हूँ, तो ये 17 और 240, तो थर्ड वैल्यू जो है 17 और 240 वाई की वैल्यू, ये आपकी प्लॉट, ये आपका स्कैटर प्लॉट है। क्या है ये आपका स्कैटर प्लॉट, ठीक है। अब इसमें बेस्ट फिट लाइन कैसे आएगी, वो जो आपने कैलकुलेशंस की है ना यहाँ पर, ये एम निकला है और ये बी, इस लाइन को आप मैथमेटिकली प्लॉट कर लें। कैसे करते हैं, कुछ वैल्यूज लेते हैं एक्स की और कुछ वो वैल्यूज इसमें यूज करके आप वाई की वैल्यूज कंप्यूट करते हैं, मैं वो भी यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं कहता हूँ प्लॉट रिग्रेशन लाइन, इस कोशिश करता हूँ इसी के ऊपर हो जाए, ठीक है। ये एक्स की हमने रैंडम वैल्यूज लेनी होंगी, वाई ये आपका जो रिग्रेशन मॉडल से होगा वो कंप्यूट होगा। एक्स की वैल्यूज आप कौन सी लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इसी के ऊपर प्लॉट हो, ठीक है। तो आप ले लें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये आपने चंद एक वैल्यूज ली हैं, और इन्हीं वैल्यूज एक्स की पर वाई की वैल्यूज आपने कंप्यूट करनी है, ये मॉडल यूज करके। मॉडल आपको नजर आ रहा है, 17.18 टाइम्स एक्स, तो ये होगा आपका 17.18 मल्टीप्लाइड बाय आपकी ये एक्स की वैल्यू है, माइनस 53 पॉइंट, ये जो वैल्यू है आपकी 7, और ये वैल्यू आपकी इन सब वैल्यूज। अच्छा, अब इनको सिलेक्ट करके या इन पेयर्स को यूज करके आपने स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है, ये डॉट वाला प्लॉट नहीं प्लॉट करना, ठीक है। सो आई विल जस्ट यूज दिस वन एंड दिस लाइन, ठीक है। अब ये बदकिस्मती तो मुझे पता था ये अलग ग्राफ बनेगा, कोशिश करता हूँ मैं इसको यहाँ इसी में लेके जाऊं, कंट्रोल एक्स, नहीं हो रहा। ये अगर इसी के ऊपर लाइन आ जाती ना, तो आपको नजर आता कि ये किस तरह बेस्ट फिट हो रही है, स्टिल ट्राई कि ये हो जाता है। ओके,
ये डायरेक्टली इसमें सहूलत थी, ये वाली स्ट्रेट लाइन की हम देखें। ये जो स्ट्रेट लाइन डॉटेड बनी है ना, ये आपकी इस इक्वेशन से बनी है। इस इक्वेशन को जब आप मैथमेटिकली प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ओरिजिनल आपका डेटा जो है वो डॉट्स वाला था, ठीक है। आप देखें कि सिर्फ 2 में से बिल्कुल प्रॉपरली गुजर रही है, बाकी 3 का उसका डिफरेंस थोड़ा सा है, बट दिस इज सपोज टू बी द बेस्ट फिट लाइन। डिडक्शन, गिव मी जस्ट 1 or 2 minutes. Okay. Thank you. Okay. ठीक है। So there are 1,000 possible lines, लेकिन this is the best fit के सबका जो accumulative error है या difference है या सब पॉइंट से जो इसकी distance है, that's the minimum one सबसे, ठीक है। And this is mathematically, I mean, proved, तभी ये best line है। और इस line के जो parameters हैं y intercept और n, वो हमने इस तरह compute किए। Did I make sense? आप किसी का जो क्वेश्चन था ग्राफिंग का, that was clear? ओके, आई अपडेटेड दी स्लाइड्स जो आपको मैंने ग्रुप पे सेंड की थी। ये उसके बाद मैंने ये कंप्यूटेशंस यहाँ लिखी हैं, ठीक है। तो मैं ये दोबारा सेंड कर देता हूँ एलएमएस पे, ये आपकी अपडेटेड फाइल होगी। आई ओपनड दिस फाइल राइट नाउ। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं और आई होप यू कैन सी दिस डॉक्यूमेंट। इज इट विजिबल, द पीडीएफ वन हैंड आउट? इज दिस विजिबल? ओके, दो सेक्शंस हैं इस चैप्टर के, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कपल ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, थोड़ी सी ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन भी है। दिस इज अगेन द सिंपलेस्ट फार्मूला व्हिच वी यूज्ड वन। एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव नेगेटिव रैंडम है, नो। एंड दिस इज एग्जांपल 1। कोरिलेशन फाइंड किया गया है। कोरिलेशन में आपको x और y ये 2 कॉलम्स गिवन होते हैं। यू नीड टू कंप्यूट 3 कॉलम्स, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड x टाइम्स y, फिर इनका सम करना होता है ऑफ कोर्स, ठीक है। एग्जांपल 1, देन एग्जांपल 2, अगेन x और y की वैल्यूज गिवन है। जरूरी नहीं है कि आप टेबल बनाएं, इफ यू आर स्मार्ट आप x स्क्वायर्स डायरेक्टली और उनका सम कर लें, एंड काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू दिस। एग्जांपल 3, another data set. Similarly, आप अगर जाएंगे रिग्रेशन में, this is the formula where you compute m like this one and b like this one. ये आपका y बार है, summation of y over n। ये आपका x बार है, कंफ्यूज नहीं होना। y बार माइनस m टाइम्स x बार, m आपका ये यहाँ यूज होगा b कंप्यूट करने में, y इंटरसेप्ट कंप्यूट करने में, ठीक है। वही एग्जांपल्स जो कोरिलेशन के लिए 4 एग्जांपल्स थे, उन्हीं का आपने यहाँ पर रिग्रेशन फाइंड करना। अच्छा, जितना स्लोप ऊपर नीचे आता है वो डेटा को ऑफ कोर्स देख के ही आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, चारों क्वेश्चंस का किया गया है जो कोरिलेशन में है। सो दिस हैंडआउट विल बी विथ यू ऑन द एलएमएस अगेन, दिस वन चैप्टर। So this was about today's lecture and this is very important. It constitutes almost 1/4 of 5 points है आपका question. If you go through today's lecture carefully, and if you need to, if you know okay, how to find correlation, coefficient, and regression line, you can um, grab 5 points. Any question? We have less than 1 minute. We will not start meeting again. If you have any question, you can text me, call me, or whatever convenient way you think. You can email me. आप मुझसे पूछ सकते हैं। Otherwise, see you on Friday in the class. We have less than 1 minute. If you have quick questions, you can just throw. Go ahead, unmute yourself and ask questions. आप मुझे अभी व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करता हूँ, उस पर फाइल्स अपलोड करेंगे, मैं वहां से अटेंडेंस मार्क कर लूंगा, या आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं कन्वीनियंटली। उसको देख के जो जो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड कर देगा नाम लिख के, मैं वहां से अटेंडेंस मार्क कर, ठीक है। थैंक यू, सी यू ऑन फ्राइडे देन।